start the today's session. So we are going to cover the economic series, right? We are going to cover the economic series, and exactly what we will discuss here. We'll discuss each and every topic of economics, and I'll promise either you are preparing for what you are preparing for CDS, you are preparing for NDA, or you are preparing for CRPF, right? Either for the UPSC. We'll discuss from NCRT level to advanced level, right? We'll discuss each and every terminology, each and everything, and we'll move from NCRT level towards the advanced level, right? And here I believe every question will come from this series only, right? Okay, so further without any delay, let's start the today's session. Okay, so what we are going to cover? First of all, let's start the today's session with the topic that is inflation, right? Okay, so we'll start with inflation. Now, sir, what is inflation? Right? What inflation means? Here, inflation means whenever your price increases, it means you are having the inflation. For example, how? For example, you are having the product one. Here you are having the, for example, here you are having the product one. In this product one, earlier it was selling at the price of 40, and now its prices increases by 10 and it becomes 50, and then its price increases by 30 and it becomes 80. Now here what you are doing, earlier the same thing. For example, here is the person 1, here is the person 1. Okay, earlier the person 1 is just buying the thing at rupees 40, but later on he's buying the same product at rupees 50, and after that he's buying the same product at rupees 80. So it means what? It means that he is buying when he's going to buy here the product at the cost of 80. So here what is it means? It means here that, sir, here actually he's giving rupees 40 extra, right? Earlier the same product was selling at the price of 40, but here he is giving rupees extra 40 rupees, right? So what does it mean? It means here the prices of the object increases, so that is inflation. That is the inflation. Exact definition of inflation is whenever your prices of the product increases, it means that here we are having the inflations. Okay, now the very important thing that which you all have to know, note, right? In the different examination, this is the previous year questions, right? That, sir, whenever our inflation increases, whenever the inflation increases, it means what? It means economy of a country, economy of a country is also increasing, right? Economy of a country is also increasing. What does it mean? For example, here the same product I am getting at rupees 40, after then 50, then 80, then it becomes 80. And here when a single person, when a person one buys the same product at the cost of 80 rupees, he is giving rupees extra 40. So this extra 40 rupees is what is your, is added in your GDP, that is your gross domestic product. We will discuss it later on, right? But it is going to add in our economy. Now here person one is adding extra 40 rupees. Now let's have an example. For example, this product one will buy, for example, 10,000 people are going to buy product one. So it means 40,000 rupees will be the profit, right? So it means whenever the inflation increases, economy itself increases. But always remember that inflation should be in the percentage of 4 plus minus 2. And who sets this? This was set up by RBI. RBI plays an important and vital role in the inflation, right? How? We will discuss it later. So here the percent of the inflation should be in between 2% and 6%. If the inflation decreases by 2%, so it means we are having the disinflation. We will discuss in another, right? So if the percentage increases by 6, so it is also dangerous for the economy, because if the product are going to be at a high prices, so the demand of the product itself decreases, right? Either it's a given or inferior goods. But here what we discussed that, sir, the inflation of a country, of India country, should be between 4 plus minus 2, right? So this is the concept of what? This is the concept of inflation. I hope you guys know this concept. Okay, further,
Further, we'll discuss about the another concept. Another concept is of disinflation, right? Disinflation. Now, disinflation is the exact opposite of what? Opposite of inflation. It is opposite of inflation. In the inflation, we say that the product of a price increases, but here we say that when our price decreases, when our prices decreases. So then we say that here we are having the disinflation. Okay, okay. No, sorry. यहाँ पर disinflation नहीं आएगा. This is your topic of deflation. This is your topic of what? This is your topic of deflation. करेक्ट कर लो भाई सब एक बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है. ओके. डिफ्लेशन. डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? जब हमारे प्राइसेस क्या होते हैं? जब हमारे प्राइसेस डिक्रीज होते हैं. ओके. ठीक है सर. इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग अ प्रोडक्ट 1. ये जो प्रोडक्ट था ये कितने का पहले मिल रहा था? ये पहले हमें मिल रहा था 80 का. अब इसका प्राइस का डिक्रीज हो गया 70 रुपीज. ठीक है जी. अब हो क्या रहा है? फॉर एग्जांपल हियर वी हैविंग द पर्सन 1. नाउ लेट्स सपोज हियर वी हैविंग द पर्सन 2, right? When this person 2 is buying the same product at the price of 80, right? And then he's buying the same product at the price of 70. So here he is having the profit of 10 rupees. He's having the profit of 10 rupees. So you guys will mean that sir, it means deflation is good for our economy? No. Why? See, here the economy, here the economy have a loss of 10 rupees. 10 rupees loss of economy, right? So it means for example if one person is doing the loss of 10 rupees, so our India country for example 2 crore rupees, 2 crore people will do how much loss? It will it will break down our economy, right? So we always say that sir, what, that disinflation, it is very important point that disinflation is very bad. Disinflation is very bad for economy. For our economy, it is very bad. Why? We already discussed that sir, whenever the prices increases, the loss of the GDP is there. So it means disinflation is very very bad. अरे अगेन डिसइंफ्लेशन आ रहा है. इट्स डिफ्लेशन, राइट? करेक्ट कर लेना भाई साहब, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना. बार बार मन के अंदर डिसइंफ्लेशन आ रहा है. ठीक है. ओके. ठीक है. अगला कंसेप्ट क्या था सर? दिस इज योर डिसइंफ्लेशन. ओके. अगला हमारे पास कंसेप्ट आ रहा है यहाँ पर. अगला हमारे पास कंसेप्ट आता है किसका? सर, डिसइंफ्लेशन का. जो आप बार बार वो वर्ड रिपीट कर रहे हो उसका हमारे पास फाइनली आ गया. ठीक है जी. ओके. यहाँ पर लिखेंगे डिसइंफ्लेशन. अब डिसइंफ्लेशन का मतलब क्या होता है? देखो सिंपल है, बहुत सिंपल है. सिंपल क्या है? आप लोगों ने इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ चुके हो. आपको पता है कि सर फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का बिक रहा था पहले, ठीक है, अब वो 120 का बिक रहा है. और अब वो कितने का बिक रहा है सर? फॉर एग्जांपल 132 का बिक रहा है. ठीक है जी. आप लोगों को ये चीज पता है कि सर दिस इज इन्फ्लेशन. बट आप लोगों ने यहाँ पर एक चीज नोटिस करी होगी, यहाँ पर ये 20% बढ़ रहा था एंड यहाँ पर ये सिर्फ 10% इंक्रीज हुआ. मतलब क्या? इन्फ्लेशन. मतलब इसका जो रेट है वो तो सर डिक्रीज हो रहा है. इसका मतलब क्या? डिसइन्फ्लेशन हम उसको बोलेंगे जहां पर हमारी इन्फ्लेशन होगी. यहाँ पर हमारी इन्फ्लेशन तो बढ़ेगी सर, महंगाई तो होगी, बट उसके साथ साथ क्या हो जाएगा? बट रेट ऑफ इन्फ्लेशन डिक्रीजेस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रेट ऑफ इन्फ्लेशन डिक्रीजेस. राइट. आई होप ये आपको इसका समझ लगा होगा. सो वी डिस्कस इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एंड डिसइन्फ्लेशन. ठीक है जी. अगला हमारे पास कंसेप्ट आ रहा है. अगला हमारे पास कंसेप्ट कैसा है? रिफ्लेशन का. रिफ्लेशन. Now, what exactly we mean by reinflation? So, reinflation means, for example, here we have in the product of 80 rupees, so 100 rupees, sorry, right? And it decreases by 20 and it becomes 80. Okay, then it becomes 60. Then suddenly this prices increases and becomes 70. Right now, here is what? Here we are seeing that sir, earlier there is a deflation. Deflation is there, but suddenly at a point here the inflation is also there. For example, you all know about the rate of tomatoes, onions, right? For example, this is the onion rate. Earlier, the onion was selling of 1 kg of onion is selling at the price of 100. After that, it decreases by 80, then it becomes 60. Then again, after some time, it increases by rupees 10 and becomes 70.
So here we are seeing both. Here we are seeing the both terms. That is, here we are seeing inflation also, plus we are seeing deflation also. So it is known as what? It is known as our what? This is known as our deflation. राइट? आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर होगा. ठीक है. नाउ फर्दर डिस्कस करते हैं. नाउ विल डिस्कस फर्दर. आगे हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिमांड पुल इन्फ्लेशन. क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं अपना डिमांड पुल इन्फ्लेशन. ठीक है जी. एक बार समझेंगे किसको? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भाई साहब. मैं फिर बोल दूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपना डिमांड पुल इन्फ्लेशन. डिमांड पुल इन्फ्लेशन. नाउ सर व्हाट एग्जैक्टली इट मींस? बताता हूं सर, अभी बताता हूं इसका मतलब क्या होता है. आप लोग इन्फ्लेशन पढ़ चुके हो, आप लोग डिफ्लेशन पढ़ चुके हो, डिसइन्फ्लेशन एंड रिफ्लेशन भी आप लोग पढ़ चुके हो. अब आपके लिए चीजें समझनी काफी आसान हो जाएगी. अब इसमें होता क्या? इसमें क्या होता है सर? डिमांड की वजह से. सबसे पहले कंसेप्ट समझेंगे डिमांड का. किसका सर कंसेप्ट समझेंगे? डिमांड का एंड सप्लाई का. फॉर एग्जाम्पल सर यहां पर था एक अमित. ठीक है जी. अमित एक शॉपकीपर था. ठीक है जी. अमित क्या था? एक शॉपकीपर था. अब क्या हुआ? अब मेरे पास फॉर एग्जाम्पल यहां पर आया रोहित आया. ठीक है जी. रोहित मेरे पास आता है मोबाइल लैंड. आई हैव अ ऑटोमोबाइल शॉप. मेरे पास क्या है सर? मोबाइल शॉप है. ठीक है जी. अब हुआ क्या? अब जब रोहित मेरे पास आता है, रोहित मेरे को बोला कि भाई ये काम करना, मेरे को मोबाइल देना ओप्पो का. ठीक है जी. मैंने उसको मोबाइल दे दिया. मैंने किया, अब मैंने उसको मोबाइल दे दिया. सर ये क्या थी मेरी? ये मेरी सप्लाई थी जो मैंने इसको दी. अब रोहित की क्या थी? रोहित की डिमांड थी मोबाइल मांगना. रोहित क्या कर रहा था? मेरे से डिमांड कर रहा था. किस चीज की? मोबाइल की. और जो मैंने इसको दी वो मेरी क्या थी एक्चुअल में? वो मेरी थी सप्लाई. ठीक है जी. देखो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स का मतलब है सर, जब हम लोग कोई एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं, हर एक चीज को फील करना. जब तक आप लोग फील नहीं करोगे आपको चीजें समझ नहीं आएगी. when the day you are enjoying the economics, I'm damn sure you have a strong command on the economics, right? Okay. So this is the what the exactly meaning of demand and what is supply. Okay. Demand means what, sir? Demand means whatever the person is demanding from me, right? And supply means what? I'm selling the things, so it's my supply. Okay, okay, ठीक है. Now let's comes towards demand pull inflation. In the demand pull inflation, it means that sir, whenever due to a demand, right? Due to demand increase, due to demand increase, due to demand increase, the prices also increases. उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिमांड पुल इन्फ्लेशन. इसका मतलब क्या होगा? अभी बताता हूँ. देखो सिंपल है. इसका मतलब क्या है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन. देखो इसको जब भी आपको चीज समझना है इसको तोड़ दो. ठीक है. इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? महंगाई. पुल का मतलब होता है खींचना. डिमांड का मतलब क्या है? जो हमारी डिमांड. इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब सिंपल है कि जब मेरी डिमांड बढ़ेगी, जब मेरी डिमांड बढ़ेगी उससे क्या होगा? उससे मेरी इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी. उससे क्या होगा? मेरी इन्फ्लेशन यहां पर बढ़ेगी. अब बताता हूं कैसे. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. ठीक है नहीं? अब फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक एग्जांपल लेंगे हम लोग. फॉर एग्जांपल ये अमित, अगेन अमित की. ठीक है. ओके. अब हुआ क्या सर? अब मेरे पास यहां पर पैसा नहीं है. आई एम हैविंग नो मनी. आई एम नॉट हैविंग एनी मनी. मेरे पास कोई पैसा नहीं है. मेरे पास पैसा के नाम पे 0 रुपए है. ठीक है नहीं? ओके. अब हुआ क्या सर? अब हुआ क्या? मैं एक कंपनी में काम कर रहा था और उस कंपनी में को सैलरी दी. मेरे को सैलरी दी. उस कंपनी ने जब मेरे को सैलरी दी तो मेरी सैलरी थी फॉर एग्जाम्पल 40,000. ठीक है नहीं? अब हुआ क्या? जब मेरे पास पैसा आ जाएगा, मेरे पास क्या हुआ? पैसा आ गया. तो पैसा आने से क्या हो जाएगा? मेरी से डिमांड्स भी तो बढ़ जाएंगी. कैसे? फॉर एग्जाम्पल पहले मेरे पास पैसा नहीं था तो मैं क्या कर रहा था? अपना खर्चा कर रहा था. खर्चा बहुत मुश्किल से कर रहा था. ठीक है. अपने आप को, अपनी जिंदगी को गुजार रहा था बड़े मुश्किल से. जब मेरे पास पैसा आया तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज को बाय करना शुरू कर दिया. ऐसा ही होता है. जब आपके पास पैसा आएगा आप ये चीजें बाय करोगे. फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी को जल्दी नहीं. ओके. सो एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं सर. अब एग्जैक्टली होता क्या है यहाँ पर? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है रीना. हमारे पास कौन है? रीना है. ठीक है जी. अब होता क्या है? रीना को लगी भूख. रीना को भूख लगी, उसको जाना है डोमिनो से पिज्जा ऑर्डर करना है.
अब उसके पास पैसा ही नहीं है, उसके पास क्या है, पैसा ही नहीं है, तो क्या वो ऑर्डर कर सकती है पिज्जा? कभी भी नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती। तो अगर रीना के पास यही उसके रीना के पास पैसा होता, अगर यही क्या होता, रीना के पास पैसा होता, तो रीना क्या करती, रीना डोमिनोज खाती। अब इससे होता क्या, अब इससे क्या होता है, रीना पैसा खर्च रही है और रीना की क्या हो रही है यहाँ पर, डिमांड भी तो बढ़ रही है। रीना की क्या बढ़ रही है यहाँ पर, डिमांड बढ़ रही है कि ठीक है सर, मैं रोटी नहीं खाऊंगी तो मैं डोमिनोज पिज्जा खा लूंगी, पिज्जा नहीं खाऊंगी तो मैं और कुछ खा लूंगी, ठीक है। सो दिस इज द वर्ड, दिस इज एग्जैक्टली आर डिमांड पुल इन्फ्लेशन। फिर से देखेंगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होती है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज दैट इन्फ्लेशन that due to the increase of demand whenever the economy increases or the inflation increases, that is the prices increases, so तब हम लोग क्या बोलते हैं सर, तब हम लोग बोल देते हैं हमारी इकोनॉमी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है नी, आई होप आप लोगों को ये चीज समझ लगी होगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक कंसेप्ट आता है, एंड ऑलवेज रिमेंबर, एक और बात याद रखना यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाल के लिख लो सर, नोट डाल के लिख लेना यहाँ पर। ओके, क्या लिखना है सर, यहाँ पर लिखेंगे, जितनी ज्यादा हम मनी सप्लाई करेंगे पीपल्स को, जितनी ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, मनी सप्लाई करेंगे, उससे होगा क्या सर, उससे और कुछ नहीं होगा, बल्कि हमारी क्या होगी, जितनी ज्यादा मनी सप्लाई को हम लोग क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, उतनी ज्यादा हमारी डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगी। इन्फ्लेशन तो होगी होगी, बट वो कौन सी होगी, वो हमारी होगी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, समझ लग गया? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर, जब भी हम लोग लोगों के बीच में पैसा बांटेंगे तो लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी, क्या होगा, फिर से लिख लो, यहाँ पर भी लिख लो सर, जब भी पीपल के पास मनी इन हैंड होगा, जब भी पीपल्स के पास क्या होगा, मनी इन हैंड होगा, किसके पास ज्यादा होगा, तो वो उसकी जो डिमांड होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है नी, सो दिस इज व्हाट, दिस इज आर डिमांड पुल इन्फ्लेशन ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ मनी सप्लाई। तो उससे क्या हो रहा है, हमारी डिमांड बढ़ रही है, ठीक है नी, डिमांड के बढ़ने से क्या होता है, हमारी डिमांड पुल इन्फ्लेशन आती है। ठीक है, सो दिस इज द वर्ड, दिस इज आर, अगर किसी के पास मनी इन हैंड ज्यादा हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा सर, उससे हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। सो दिस इज योर डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, अब हमारे पास आगे एक कंसेप्ट आता है, आगे हमारे पास कंसेप्ट कौन सा आता है, आगे हमारे पास इसी प्रकार से कंसेप्ट आता है जिसका नाम क्या है सर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अपना, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सर अपना कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यहां पर लिखेंगे। ओके, नया हेडिंग, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब सर एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, आपका एग्जैक्ट मीनिंग है? देखो सर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर हमारी सप्लाई, फॉर एग्जांपल अगर हमारी सप्लाई घट जाएगी तो उससे भी तो हमारी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, उससे क्या हो जाएगा, हमारी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। कैसे सर, अभी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इससे क्या होगा, हमारी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सब्जी मंडी में गया, मैं एक सब्जी मंडी में गया, ठीक है। अब सर जब मैं सब्जी मंडी में गया, तो सब्जी मंडी में मैंने देखा वहां पर कि मैंने अनियन खरीदना था, मैंने खरीदना था वहां पे, एक अनियन खरीदना था, अनियन 1 kg, ठीक है। अब सर पीछे से ही अनियन नहीं आया था, पहले अनियन का प्राइस क्या था, पहले अनियन का प्राइस था फॉर एग्जांपल 50 रुपीज पर केजी, ठीक है। अब हुआ क्या, अब उसकी सप्लाई डिक्रीज है, मतलब पीछे से ही उसको अनियन नहीं आ रहा मार्केट में, पीछे से ही अनियन नहीं आ रहा, तो क्या हो जाएगा, यही अनियन जो होगा वो हमें कितने का बिकेगा, उसके बाद 80 रुपए का बिकेगा, 80 रुपए पर केजी। अब इससे हुआ क्या, इससे हमारा प्राइस ही तो इंक्रीज हुआ, मतलब ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ सप्लाई हमारा क्या बढ़ रहा है, हमारी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं उसे, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट दिस कंसेप्ट, ठीक है, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि सर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हम लोग किसको बोलते हैं, एंड हम लोग अपनी डिमांड पुल इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं। ओके, ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अपना, आगे हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। ओके, अनदर कंसेप्ट क्या आता है हमारे पास, अनदर हमारे पास कंसेप्ट आ रहा है यहाँ पर, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। सर इन्फ्लेशन की भी हमारे पास क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। कैसे,
याद करो जब मैंने आपको पहले बोला था कि सर इन्फ्लेशन जो होती है वो हमारी कितनी होनी चाहिए, अगर जो हमारी इन्फ्लेशन वो 2% से लेके 6% के बीच में है तो वो ठीक है सर, वो क्या है, वो इन्फ्लेशन ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग पहले हमारे नंबर पर आते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब होता है रेंगना, रेंग रेंग कर हमारी इन्फ्लेशन मतलब बहुत थोड़ी थोड़ी करके हमारी इन्फ्लेशन बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या है, हमारे पास एक प्रोडक्ट वन था, वो उसकी पहले प्राइस क्या था, वन थी, सॉरी 10 थी, अब उसका प्राइस क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया 10.25 बढ़ गया, मतलब एकदम धीरे धीरे से हो रही है। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलेंगे अपनी क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ये कितने परसेंट के बीच में आएगी, इट विल कम्स अराउंड, अगर हमारी इन्फ्लेशन 1 से लेके 4% के बीच बीच में ग्रो होती है तब हम लोग बोलेंगे हमारी क्या है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। उसके बाद क्या आती है, उसके बाद हमारे पास आती है वॉकिंग इन्फ्लेशन। ओके, एक होगा रेंगना, अब हो गया वॉकिंग इन्फ्लेशन। ठीक है जी। अब सर वॉकिंग इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, वॉकिंग इन्फ्लेशन का मतलब है जब हमारी जो हमारी क्या है, हमारी इन्फ्लेशन वो 4 से लेके 10% के बीच में लाई करेगी, उसे हम लोग क्या बोल देंगे, अपनी वॉकिंग इन्फ्लेशन बोल देंगे। ओके सर, उसके बाद थर्ड हमारे पास आती है क्या, रनिंग इन्फ्लेशन। अब सर व्हाट एग्जैक्टली वी मीन बाय रनिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन मींस whenever the inflation whenever the inflation increases by increase 10%, जब 10% प्लस हो जाएगा तब हम उसको क्या बोल देंगे, हमारे पास क्या हो रही है, हमारी रनिंग इन्फ्लेशन। ठीक है जी, इसलिए बोलते हैं ज्यादा इन्फ्लेशन भी हमारे लिए अच्छी नहीं है। अब हम लोग समझेंगे आगे, जो कि जहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, दैट इज हाइपर इन्फ्लेशन। दिस इज अ यूपीएससी पीवाई, यहां से पूछा गया था हाइपर इन्फ्लेशन से। ओके, सो सर व्हाट इज हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन होता क्या है भाई, हाइपर इन्फ्लेशन का होता है मतलब होता है फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब छोटे से टाइम में क्या हो जाए, हमारी इन्फ्लेशन जो है वो बहुत हाई है, मतलब एक्सट्रीम लेवल पर वो हाई है। ओके, फॉर एग्जाम्पल समझिए, फॉर एग्जाम्पल मैं एक मार्केट में गया, पहले अनियन हमें क्या मिल रहे थे, मिल रहे थे यहाँ पर 30 रुपीज पर के जी। उसके बाद 2 घंटे बाद गया तो वही हमें अनियन मिल रहा है 50 पर के जी। उसके बाद मैं 1 घंटे बाद गया तो मेरे को यही मिल रहा है 100 रुपीज पर के जी। उसके बाद मैं गया, अगली मॉर्निंग गया तो मेरे को यही मिल रहा है 300 रुपीज पर के जी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन का, इसे ही हम लोग क्या देते हैं, यहाँ पर सर हम इसको नाम देते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। क्या होता है हमारे पास, हाइपर इन्फ्लेशन और कुछ नहीं होता है हमारे पास, बल्कि हाइपर इन्फ्लेशन हम उसको बोलते हैं जब हमारे पास मार्केट में चीजें बहुत ज्यादा महंगी है, एक्सट्रीम लेवल पर। अब यहाँ पर एक एग्जांपल थी हमारे पास जिम्बाब्वे की, कईयों ने जिनको करंट अफेयर का पता होगा उनको पता होगा जिम्बाब्वे का। अब सर जिम्बाब्वे में सीन क्या हुआ था, देखो जिम्बाब्वे का सीन ये था कि सर पीपल के पास पैसा ही नहीं था, पीपल के पास पैसा ही नहीं बचा था चीजों को लेने का, उनके पास पैसा ही नहीं था बाय करने का। ठीक है, एकदम भुखमरी फैमिली फैल चुका था, उनके पास पैसा ही नहीं था। तो गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करती है, गवर्नमेंट यहाँ पर एक इनिशिएट लेती है, और गवर्नमेंट सोचती है कि ठीक है यार, पैसे तो हम लोगों के चेपने हैं, तो हम लोगों को मार्केट में पैसा पैसा बढ़ाना है, तो हम लोग एक काम कर लेंगे, हम लोग हर हर पीपल के, हर बंदे के अकाउंट में 1 लाख रुपए डाल देंगे। हम लोग क्या करेंगे, हर पीपल के अकाउंट में 1 लाख रुपए डाल देंगे। अब सर वो लोग इकोनॉमी नहीं जानते अच्छे तरीके से, उनको नहीं पता था कि सर अगर हम लोग पीपल्स को पैसा दे देंगे, अगर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर पीपल को पैसा देंगे, मतलब बंदों को पैसा इंक्रीज कर देंगे, उससे हमारी और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। इन लोगों ने तो किया था, ये स्टेप उठाया था इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है जी, बट यहाँ पर क्या होगा, जब उन्होंने पैसा बांट दिया, जब उन्होंने पैसा बांट दिया, देखो पैसा बांट दिया बट सप्लाई तो उतनी ही है, सप्लाई तो हमारे पास उतनी ही है। सप्लाई में तो देखो, सप्लाई में तो कोई चेंज नहीं है सर, सप्लाई में तो नो चेंज, सप्लाई में कोई चेंज नहीं था। बट हुआ क्या, यहाँ पर हुआ ये कि अब यही जो हमारे पास पहले ब्रेड का पैकेट जो हमें 100 रुपए में बिक रहा था, अब वही ब्रेड का पैकेट हमें कितने में मिलेगा, 10,000 में मिल रहा था वहां पे, 10,000 में एक अनाज मतलब एक ब्रेड का पैकेट मिल रहा था। पीपल बैग, बंदे क्या करते, पैसा का बैग लेके जाते थे उनके पास, दुकानदार के पास सामान खरीदने के लिए, क्यों, अरे क्योंकि सर हमारे पास इन्फ्लेशन तो उतनी ही है, सॉरी हमारे पास सप्लाई तो उतनी ही है। हुआ क्या, जब हमने बंदों को पैसा दे दिया, उससे उनकी डिमांड और भी बढ़ गई, और उस डिमांड्स को बढ़ने के अलावा जब हमारे पास ऐसे डिमांड बढ़ते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, अपना नाम देते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन का। ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं अपना किसका, डिमांड पुल
इन्फ्लेशन। तो इसका मतलब क्या है, हाइपर इन्फ्लेशन हम तब बोलेंगे, ऑलवेज रिमेंबर सर, हाइपर इन्फ्लेशन तब आएगी जब हम लोग पीपल को पैसा बांटेंगे। क्या करेंगे, जब हम लोग बंदों को पैसा बांटेंगे, मतलब न्यू करेंसी को, जब हम लोग न्यू करेंसी को छापेंगे, तो तब उससे क्या होगा, उससे हमारी हाइपर इन्फ्लेशन आएगी। लिख लो भाई साहब, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू करेंसी, जब भी हम लोग क्या करते हैं, न्यू करेंसी को छापते हैं यहाँ पर, राइट। न्यू करेंसी जितनी हम लोग लेके आएंगे, उतनी ज्यादा क्या होगा हमारी, सर उतनी ज्यादा हाइपर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। बस आपका यही क्वेश्चन था भाई, आपका यही क्वेश्चन था यूपीएससी का। ठीक है, अगर आप लोग इन बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझते हो ना, तो तभी आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाएगी आगे करने के लिए। ठीक है, ओके सर। आगे हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट आता है, आगे भी हमारे पास एक हल्का सा कंसेप्ट आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अपना स्टैगफ्लेशन। आई होप कईयों ने ये वर्ड सुना भी होगा, बट कईयों ने नहीं सुना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराने की बात नहीं, आप सीख लेंगे। ओके, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, अब हम लोग बात करेंगे अपनी स्टैगफ्लेशन के बारे में। ओके, तो स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है, देखो, स्टैगफ्लेशन का मतलब सिंपल है, स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या सिंपल है, स्टैगफ्लेशन सबसे डिफिकल्ट होती है सिचुएशन कोई भी कंट्री के लिए। फिर से याद रखना, जब भी कोई भी कंट्री में स्टैगफ्लेशन आ जाएगा, वो कंट्री इकोनॉमी काफी ज्यादा सफर कर रही है। कैसे हो, क्या रहा है, यहाँ पर हाई इन्फ्लेशन होती है। स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या है, जब हमारे पास हाई इन्फ्लेशन हो, क्या हो, हाई इन्फ्लेशन हो, प्लस उसके साथ क्या हो हमारे पास, हाई हाई इन्फ्लेशन है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी भी जब हमारी यहाँ पर बहुत ज्यादा ऊपर होती है, उसके साथ क्या होता है सर, उसके साथ हमारी जो कंट्री है, इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, इकोनॉमी स्टैक कर जाती है, मतलब इकोनॉमी रुक सी जाती है सर। कैसे, देखो, अब स्टैगफ्लेशन वेरी 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 डेंजरस सिचुएशन है। क्यों, देखो सर सिंपल है, स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या है, स्टैगफ्लेशन का मतलब है जब मेरे पास हाई इन्फ्लेशन है, जब मेरे पास क्या है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट है। अब फॉर एग्जांपल कोविड पीरियड आया था, आपके पास क्या आया था, कोविड पीरियड आया था, आप लोगों को पता होगा। अब उस कोविड पीरियड में क्या हुआ था, हमारी जो पीपल्स है उनको अनएम्प्लॉयड हो गए थे, पीपल सारे अनएम्प्लॉयड हो गए थे, और हमारी इन्फ्लेशन थोड़ी सी बढ़ गई थी, चीजें महंगी हो गई थी। ओके, अब इससे हुआ क्या, अब अगर अगर हमारी सरकार भी जिम्बाब्वे की तरह सोचती, राइट, और अगर वो पीपल्स को पैसा देती, अगर वो यहाँ पर बंदों को पैसा देती, ठीक है, या फिर रोजगार देती, एम्प्लॉयमेंट देती, इससे होता क्या, इससे सर उनकी डिमांड ही तो बढ़ती, इससे उनकी डिमांड बढ़ती, अगर उनकी डिमांड बढ़ती, तो क्या होता, हमारी इन्फ्लेशन बढ़ जाती। ठीक है, क्योंकि उनके पास पैसा जाएगा, जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा डिमांड एंड उतनी ज्यादा इन्फ्लेशन। ओके जी, अब इससे हो क्या रहा है, मतलब सर जब भी हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को काउंटर कर रहे थे, जब भी हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को काउंटर कर रहे थे, तो उससे हो क्या रहा था, हमारे पास इन्फ्लेशन बढ़ जाती थी। ठीक है जी, एंड उसी तरीके से जब हम लोग पीपल्स को बंदों को रोजगार नहीं देते थे, जब हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते थे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, मतलब कैसे कंट्रोल होगा, जब हम लोग पैसा ना देंगे, पैसा नहीं देंगे बंदों को, अब उससे हो क्या रहा था, उससे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही थी, बढ़ रही थी, राइट। सो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो हमारी इकोनॉमी है वो काफी ज्यादा सफर करती है, क्या करती है, यहाँ पर हमारी इकोनॉमी काफी ज्यादा सफर करती है। एक बार भाई साहब सारे क्या करेंगे, एक बार इसको हम लोग एक चीज के अंदर नोट कर लेते हैं, ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर चीजें हो जाए। ठीक है, बात करते हैं सर, ओके, एक बार यहाँ पर नोट कर लो, नोट क्या करो, नोट यहाँ पर ये करना है हमें, इफ अगर पीपल के पास, इफ मनी हैंड, मतलब अगर बंदों के पास पैसा पहुंचेगा, ठीक है जी, अगर मनी हैंड बढ़ा, तो उससे होगा क्या, उससे सर हमारी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। ठीक है, कैसे, अरे ऑब्वियस बात है सर, अगर हमारे पास पैसा होगा, रोजगार होगा, तो पैसा ही आएगा, तो उससे क्या होगी, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, बट सर उससे हमारी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, उससे हमारी इन्फ्लेशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सिमिलरली इफ मनी हैंड डिक्रीजेस, मतलब if people are having less amount of money, so what, here unemployment increases,
here unemployment increases but inflation decreases. So it means what? It means that the situation of what? The situation of this situation of stagflation is very 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 dangerous for our economy, right? So for this we are having a certain terms, we are having a certain curves. For example, starting with the Phillips curve, right? फिलिप कर्व, फिलिप कर्व ने कुछ दिया था सर हमें, फिलिप कर्व ने हमें कुछ चीज बोली थी। फिलिप कर्व क्या बोलता है? फॉर एग्जांपल, पहले एग्जांपल तो समझेंगे। ये हमारे पास एक ग्राफ है, राइट? ओके सर, ये हमारे पास एक ग्राफ है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारी इन्फ्लेशन, यहाँ पर क्या है? हमारी इन्फ्लेशन, एंड यहाँ पर क्या है? हमारी अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, अब फिलिप कर्व हमें बोलती है कि सर, फिलिप कर्व क्या हमें बोलती है? इन्फ्लेशन एंड unemployment, inflation and unemployment has inverse relation, has inverse relation। मतलब बताता हूं सर, रुको। इसका मतलब क्या लाइन का? इस लाइन का मतलब है सर, अगर हमारे पास इन्फ्लेशन बढ़ेगी, अगर हमारे पास इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी, तो उससे क्या होगा? हमारी अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो जाएगी। यही था। और क्या सर? अगर हमारे पास यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, तो उससे क्या हो जाएगा? हमारी इन्फ्लेशन डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है सर। बट बट यहां पर मैंने क्या लिखा? स्टैग्फ्लेशन के। बट नोट कर लो भाई, यहां पर नोट डालो, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल इन स्टैग्फ्लेशन। क्यों? क्यों सर? स्टैग्फ्लेशन में ये चीज क्यों नहीं लग सकती? देखो सर, सिंपल सीन है। स्टैग्फ्लेशन में हम लोगों ने पढ़ा था, स्टैग्फ्लेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सर, जब भी हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पर, जब भी हमारे पास मनी इन हैंड ज्यादा हो रहा है, उससे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रही है? यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, एंड हमारी यहाँ पर क्या हो रही है सर? इन्फ्लेशन तो बढ़ रही है। ठीक है जी, आप लोगों ने यही चीज नोटिस की। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोगों में एक स्टैग्फ्लेशन का एक तरीका बताता हूँ। स्टैग्फ्लेशन में एक सीन समझना, इस ग्राफ को थोड़ा ध्यान से समझना, इस ग्राफ को थोड़ा ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास क्या है? लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। मतलब एक फैक्ट्री है मेरे पास, मैंने एक फैक्ट्री लगाई, ठीक है, मैंने एक फैक्ट्री लगाई, एंड मेरे को फैक्ट्री में अनएम्प्लॉयड पीपल, मतलब मेरी फैक्ट्री में पीपल्स है ही नहीं, मेरे को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, मेरे को और पीपल चाहिए। ठीक है जी। अब होगा क्या? अब मैं पीपल को अट्रैक्ट करने के लिए मैं करूंगा, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनकी फ्रिक्शनल क्या से बोलते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं उनको बोलूंगा, ठीक है सर, आप एक कंपनी में 40,000 कमा रहे थे, मैं आपको 60,000 दूंगा, आप मेरी कंपनी को ज्वाइन करो। आप क्या करो? मेरी कंपनी को ज्वाइन करो। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर मैंने यहाँ पर कंपनी, एक कंपनी जो मेरी थी, मैंने किया कंपनी इंक्रीज वेजेस, वेजेस टू अट्रैक्ट पीपल। ठीक है, मैंने सर उनके वेजेस बढ़ा दिए, मैंने बोला कि आप हमारी कंपनी में आओ, मैं हम आपको ज्यादा तनख्वाह देंगे। अब इससे होगा क्या? अब मेरे को अपना लॉस कभी नहीं खाऊंगा, ऑब्वियस बात है, आई एम रनिंग अ प्रॉफिटेबल कंपनी, कमर्शियल कंपनी, सो डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनी लॉस। तो अब इसमें होगा क्या? इसमें जो हमारी कंपनी गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगी, जो भी कंपनी हमारी गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगी, उससे होगा क्या? उसमें ये कंपनी क्या करेगी? हमारी ये कंपनी हमारी चीजें महंगी बनाएगी। ऑब्वियस बात है सर, अगर यहाँ पर चीजें कोई रॉ मटेरियल 60 का होगा, तो ये कंपनी यहाँ पर कितने का बना रही? 70 का बना रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पीपल की तनख्वाह भी तो वो मैटर करेंगे, यहीं से तो वो उनकी तनख्वाह निकालेंगे, राइट? तो यहाँ पर होगा क्या? फॉर एग्जाम्पल हियर गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होगा? प्राइस भी हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अब गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस इंक्रीज होने के बाद क्या होता है? गुड्स एंड प्राइसेस का प्राइस इंक्रीज होने के बाद क्या होता है? हमारी जब भी मार्केट में प्रोडक्ट आता है, सीपीआई में आता है, तो उसमें होता है क्या है सर? हमारी इन्फ्लेशन ही तो बढ़ेगी। जब यहाँ पर प्राइस महंगा मिल रहा है होलसेल में, तो ऑब्वियस बात है, जब वो कंज्यूमर तक पहुंचेगा तो वो और इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं अपनी इन्फ्लेशन बढ़ती। अब यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ पर एक चीज को ध्यान समझना, यहाँ पर मेरी एम्प्लॉयमेंट बढ़ी। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर मैंने अपनी एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया, ठीक है, मेरी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई, और उसके साथ साथ मेरी इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो गई, राइट? यही हुआ। बट बट इन फिलिप कर्व में मैं क्या डिस्कस कर रहा था? फिलिप कर्व में मैंने आपको बोला था कि सर, दैट डिमांड
दैट इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज पैरेलल ऑफ ईच अदर। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सर, सिंपल मतलब है हमारे पास कि ये वाली जो चीज है ये फॉलो नहीं करती किसको, फिलिप कर्व को, स्टैगफ्लेशन फॉलो नहीं करता। रिमेंबर, नॉट एप्लीकेबल इन स्टैगफ्लेशन। भाई साहब बता चुका हूँ स्टैगफ्लेशन में क्यों इंप्लीमेंट ये चीजें नहीं होती, ठीक है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं सर, अब हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है जी। अब सर आगे हमारे पास एक कंसेप्ट आता है, आगे हमारे पास कंसेप्ट किसका आता है, आगे हमारे पास कंसेप्ट आता है रियल इंटरेस्ट रेट एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। क्या था, रियल इंटरेस्ट रेट स्लैश नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। अब इसमें सर होता क्या है ये बताओ भाई साहब, अभी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल तो समझेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास है, लेट्स हैव एन एग्जाम्पल ऑफ अ गर्ल, राइट, वंशिका लिख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास एक लड़की थी यहाँ पर वंशिका, ओके। अब हुआ क्या सर, अब ये वंशिका जाती है बैंक के पास, वंशिका गई बैंक के पास, ठीक है, वंशिका गई बैंक के पास। अब वंशिका ने बैंक को बोला कि सर मेरे को कुछ डिपॉजिट्स करनी है अपनी मनी, मेरे को अपनी मनी को फॉर एग्जांपल 40,000 को डिपॉजिट करवाना है, 40,000 को डिपॉजिट करवाना है। तो बैंक ने बोला ठीक है, हम आपको यहाँ पर कितना इंटरेस्ट दे देंगे, हम आप लोगों को यहाँ पर 10% इंटरेस्ट दे देंगे, ठीक है, ओके। 10% क्या दे देंगे, इंटरेस्ट दे देंगे। अब ये जो 10% इंटरेस्ट बैंक ने दिया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। तो सर रियल का मतलब क्या है, रियल का मतलब क्या हुआ सर, रियल का मतलब ये है, अब फॉर एग्जाम्पल ये चल रहा था हमारा 2019 का टाइम, ठीक है, एंड ये टाइम चल गया 2020 का टाइम, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मेरी इन्फ्लेशन बढ़ गई, मतलब जब 2020 आया, 2020 में मेरी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, मेरी इन्फ्लेशन बढ़ गई 6% से, मेरी इन्फ्लेशन की ग्रोथ होगी कितने परसेंट से, मेरी इन्फ्लेशन ग्रोथ होगी सर 6% से, ओके। इफ हियर माय इन्फ्लेशन इंक्रीजेस बाय 6%, तो बताओ अभी भी क्या मेरे को 10% रियल होगा, नहीं सर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब चीजें भी तो महंगी हो रही हैं। अगर मेरे को बैंक 10% पर लोन दे रहा है, इंटरेस्ट के ऊपर लोन दे रहा है बेशक, बट उसके साथ साथ मेरा इन्फ्लेशन भी तो बढ़ा, उसके साथ साथ मेरी चीजें भी तो महंगी हुई 6%। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो रियल कैसे निकालेंगे, रियल हम लोग निकालेंगे नॉमिनल माइनस कर देंगे इन्फ्लेशन, तब हमारे पास क्या निकल जाएगा, तब हमारे पास निकलेगा असल में रियल इंटरेस्ट रेट, ठीक है, ओके ओके सर। आई बिलीव आपको ये चीज समझ लगेगी। एक और एग्जांपल तो समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल सर, फॉर एग्जांपल मैंने, फॉर एग्जांपल यहां पर है अमित, राइट, एंड हियर वी आर हैविंग अ गर्ल नेम प्रांजल, ठीक है, लेट्स हैव एन एग्जांपल, ओके, ठीक है सर। अब हुआ क्या, अब प्रांजल को जरूरत थी 100 रुपए की, ठीक है, मैंने इसको 100 रुपया दिया, मैंने इसको 100 रुपया दे दिया, ठीक है सर, मैंने इसको 100 रुपया दिया। अब इसने मेरे को बोला ठीक है अमित, तूने मेरे को 2024 में 100 रुपया दिया है, मैं तेरे को 2025 में 10% इंटरेस्ट के साथ तेरे को मैं ये दे दूंगी, क्या दे दूंगी, 10% इंटरेस्ट के साथ तेरे को मैं ये 100 रुपये दे दूंगी। तो वो मेरे को कितने देगी, 110 रुपये दे रही है वो मेरे को 2025 में, ठीक है सर। अब इसमें हुआ क्या, इसमें ये क्या हो गया, इसमें ये क्या था, जो मेरे को 10% दे रही थी, मतलब जो मेरे को 10 रुपये दे रही थी, उससे हो क्या रहा था, उसमें वो मेरे को दे रही थी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, ठीक है नी। अब हुआ क्या, अब सर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मेरी 6% वो बढ़ गई, क्या बढ़ गई सर, 6% इन्फ्लेशन बढ़ गई। 6% बढ़ने का मतलब क्या है, पहले जो प्रोडक्ट मेरे को 100 रुपए का मिल रहा था, अब वो मेरे को मिल रहा है 106 का। तो इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब जब मैं रियल निकालूंगा तो होगा क्या, नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन को निकालूंगा, तो तब मेरे को पता लगेगा ठीक है सर, मेरे को प्रॉफिट एक्चुअल में हुआ कितना, 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ एक साल के बाद। कितना प्रॉफिट हुआ मेरे को, 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ एक साल के बाद। So these are the basic concepts of what, these are the basic concepts of inflation, right? I hope, I believe आप लोगों को ये वाली चीजें समझ लगी होगी, right? So in the similar way हम लोग अपनी क्लासेस को शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे एंड काफी ज्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे, और राइट। तो आई होप आप लोग को ये अच्छा लगा होगा, राइट, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर भाई साहब आपको वीडियो अच्छी लगे तो भाई साहब प्लीज लाइक करना जरूर
ठीक है जी, उसके साथ साथ सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन दबा देना। ठीक है जी, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग और डिस्कस करेंगे आगे फर्दर। थैंक यू सो मच अगेन। जय हिंद, वंदे भारत, वंदे मातरम। राइट, मेहनत करते रहो बस। जय हिंद।